congratulations on your wedding. Thank I you. just that day, like Aman called me and we were having conversation, and he told me that you guys recently got engaged, and I was like, wow, I didn't know that you married. When did you guys get married? We married in March. तो why did you keep it ऐसे छुपा के क्यों रखा है? तो प्राइवेट क्यों रखा रिलेशनशिप? Because उस टाइम पर स्टूडेंट्स के एग्जाम्स चल रहे थे, तो इट वाज एग्जाम सीजन फॉर JEE स्टूडेंट्स, एंड लाइक वी डिडंट वांट टू डिस्ट्रैक्ट द स्टूडेंट्स कि अपने एग्जाम पे फोकस करो, ज़्यादा ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है. तो हुआ कैसे? लाइक यू गाइस डिसाइडेड कि प्रॉपर्ली इस टाइम पे करेंगे? काफ़ी टाइम से प्लान था कि वन डे सब किसी दोनों में से किसी ने प्रपोज कर दिया एंड जस्ट हैपेंड? No, the families met and the muhurat was like that. Okay. कि it was 30th March and it was like Ram Navami, तो it's a very pious day. Yeah. And वही एक था, उसके बाद महीनों तक नहीं था, उससे पहले नहीं था, तो that was the day. घर में कर लेते हैं, let's with the families. Okay. तो ऐसे प्रपोज किया अमन भाई ने? नहीं. ये था. No, you must have seen the LPU video. Have you seen No, it? I've not seen that yet. So I had a seminar in a college and मैं वहाँ गई थी and there he surprised me and apparently उन्होंने मम्मी पापा से भी पहले से बात करके रखी हुई थी कि हम ये करने वाले हैं, तो then he came and then surprised. Oh, so then he proposed. नहीं, तब तक हमारी वैसे engagement fix हो चुकी थी. Oh, okay. So it was not like a shocker. It was not like a sub. Not like वैसा, but हाँ उस टाइम पे जब इतने सारे स्टूडेंट्स थे सामने and हमने किसी को बताया नहीं था that. अच्छा, तब तक किसी को पता नहीं था that you guys were engaged or. So you guys were dating before, or how did it happen? क्या था? It was more like a arranged marriage. You can say. It's more arranged as in? It's more arranged than dating. अच्छा. So like he approached your parents. It happened through our parents. Oh, so you guys are family friends or what? Not family friends, but I was living in Delhi, so I was close to their family, and then I had a close bond with Aman's mother, and then everything happened. Oh, okay. So Aman's mother approached your mother, and then kind of. Hey, how sweet! That is so cute. Nice, and it happened. So it's the first time when they came up to you with a like a proposition ki okay, this is what we're thinking, because it came from parents first, right? Yes. Or it came from Aman first? I don't know now. अरे यार इसलिए कैसे नहीं बताया यार, मुझे बता बड़ा इंटरेस्ट है. It was a mix of all things, you can say. But पहले तो इन्फॉर्मेशन कहीं से ट्रैवल हुई होगी? हाँ, you can say parents. Parents से. So what was your reaction to it first time? The first time I think यार मैंने तो नहीं सोचा ऐसा कभी. और you're like, hey मैं तो सोच रही थी कोई तो अप्रोच कर ले. नहीं ऐसा सोचा नहीं, but हाँ it was I had a very positive reaction because we were friends before that. So we knew each other and I respected him and it is good. Of course it is good. You know, he also, when I asked him also ki tell me about it, and he had the same, like you both of you are like very shy, like blushy people. That's so cute and like it's so nice. Congratulations. Thank I'm really happy. But okay, strategic था मतलब ये. I was just gonna ask you like ये strategic था कि नहीं बताना लोगों को? और स्ट्रेटेजिक इस सेंस में था कि हम स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते थे कि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, पढ़ लो, बिकॉज वी नो दैट दे आर गोइंग टू गेट डिस्ट्रैक्टेड. ऑब्वियसली थोड़े दिन वो उसी ओवरवेल्म्ड रहेंगे, ओपिनियंस होंगे, खुश होंगे, थोड़े से बोलेंगे अरे अभी नहीं, थोड़े दिन बाद फिर आई नो बहुत लोग मीम्स बनाने में फिर फोकस करेंगे. नाइस. ओके. एंड डू यू थिंक कि आपके डायनामिक्स एज अ पार्टनर चेंज हो जाते हैं व्हेन आप को फाउंडर भी होते हो एंड यू आर अ पार्टनर एज वेल? ये चेंज होता है कि मोस्ट ऑफ द जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं वो घूमने के बारे में या वैसे दूसरी चीज़ों के बारे में नहीं, दे आर रिलेटेड टू वर्क. यू नो, it's an interesting question. I wanted to make this first question, but I purposely chose the last question. The fact that you have so many followers, okay? Fact कि आपके बहुत सारे followers हैं, आपका initial traction अच्छा है, काफ़ी लोग आपको support करते हैं, and Shraddha Didi has become like an internet sensation in your field, right? इसका मतलब होता है कि Indian education industry में या Indian education space में कुछ कमी है, right? क्योंकि वो उनको जो एजुकेशन से नहीं मिल पा रहा है वो बाहर वैलिड वो ढूंढ रहे हैं बाहर की कोई हमें सिखा दे, एंड यू हैव गॉटन दिस. तो ये प्रॉब्लम थी जिस प्रॉब्लम का आपने सोल्यूशन लेके आ गए. तो आपको क्या लगता है ऐसा क्या अलग कर रहे हो आप? मे बी यू एज अ पर्सन, एक्चुअली मेक इट टू,
व्हाट आर यू डूइंग यू एज अ पर्सन, जिसके से लोग आपसे ज़्यादा रिलेट करते हैं, एंड इंडियन एजुकेशन में ऐसा क्या स्पेस है, क्या गैप है जो आपको लगता है कि आप सॉल्व कर रहे हो थ्रू अपना कॉलेज, जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे? सबसे पहला तो मुझे मेरे साथ बच्चा क्यों जुड़ पाता है, मुझे पर्सनली ये रीज़न लगता है क्योंकि मैंने वो लाइफ जी है जो बच्चा जी रहा है। आई ऑल्सो कम फ्रॉम सिमिलर बैकग्राउंड्स। मेरे भी छोटे 6-7 भाई बहन हैं, मतलब कज़न्स मिला के सारे, जिनका आगे फ्यूचर है। तो आई नो कि स्टूडेंट्स के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। मेरे घर पे भी वही सेम प्रॉब्लम्स ही डिस्कस हो रहे होते हैं सारे, जब चाचू मम्मी पापा कॉल कर रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं इसको आगे क्या करना चाहिए, जो सिमिलर तरीके की चीज़ें आती हैं। तो मुझे फील होता है कि कोर लेवल पे मैं पर्सनली रिलेट कर पाती हूँ कि मेरा बच्चा अगर ये कह रहा है, स्टूडेंट अगर ये कह रहा है, तो वो किस माइंडसेट से या किस बैकग्राउंड से आकर वो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। सेकेंड चीज़, मेरा खुद का भाई अभी बीटेक कर रहा है, ही इज़ फ्रॉम अ कोर ब्रांच एंड ही इज़ ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर प्लेसमेंट्स। तो जब मैं पढ़ाती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है मैं उस तरीके से पढ़ा रही हूँ कि मेरे भाई की मुझे प्लेसमेंट लगवानी है या उसकी मुझे जॉब लगवानी है। तो ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे बच्चे को कुछ बताऊँगी तो मैं उसको अलग बताऊँगी, मैं वही सेम चीज़ें अपने भाई को बताती हूँ, वही सेम चीज़ें मैं सबको बताती हूँ। तो आई बिलीव वो एक रीज़न हो सकता है। एंड अपना कॉलेज के साथ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू डिफरेंट इज़, सबसे पहला तो पहले हम देखते थे कि जैसे पहले तो मैं ये मेरे दिमाग में क्लियर है, द बिगेस्ट एडटेक कंपनी इज़ यूट्यूब। 100% इट इज़। एंड मतलब वहाँ पर जितनी चीज़ें हुई हैं शायद ही, मतलब हाँ डेफिनेटली फ्यूचर में आएंगे, मैचअप करेंगे, बट अभी के लिए नो बडी इज एबल टू मैच अप, क्योंकि YouTube वहाँ पहुँचा है जहाँ दूसरे लोग नहीं पहुँच पाते, और आज भी पहुँचता है। तो इसीलिए वही हमारा प्राइमरी मीडियम है स्टूडेंट्स तक पहुँचने का। एंड इसीलिए हमें फील होता है शायद कोई बच्चे के पास दूसरे रिसोर्सेज ना हो, पर एटलीस्ट YouTube पे बैठ के तो वो सीख सकता है, इसीलिए हम YouTube पे सबसे ज़्यादा सिखाते हैं। एंड अपना कॉलेज के साथ एक तो हम रिलेटेबल चीज़ें देने की कोशिश करते हैं कि हम स्टूडेंट्स के साथ वैसे टैकल करने की कोशिश करते हैं जैसे वो मेरा छोटा भाई है या वो मेरी छोटी बहन है। तो वहीं से ही सारी एडवाइस अंदर से आ रही होती है। मुझे अगर किसी पॉइंट पे फील होता है तो मैं वीडियोस के अंदर बोल देती हूँ कि सोसाइटीज़ ठीक है, कॉलेज सोसाइटीज़ क्लब्स ठीक है, बट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प इन योर प्लेसमेंट्स। शायद कोई ना बोले, कुछ और हो, मतलब तो मुझे जो जेन्युइनली फील होता है कि स्टूडेंट को हेल्प करेगा, हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम वही चीज़ें उन्हें बता रहे हो, वही चीज़ें वहाँ तक पहुँच पा रहे हो। उसके साथ में अपना कॉलेज के साथ, जैसे शुरुआत में ऐसा होता था जब मैं भी कॉलेज के अंदर थी, या उससे भी 2 साल पहले जब अमन सर कॉलेज के अंदर थे, तो उस टाइम पर ऐसा होता था या तो मोस्टली जो कोडिंग या टेक रिलेटेड कंटेंट होता था वो इंग्लिश में होता था, या फिर वो अच्छे से स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में ढंग से अवेलेबल तरीके से नहीं होता था। ठीक है, कुछ वीडियोस अवेलेबल है पर उसमें या तो पूरा नहीं करवाया हुआ, या कुछ टॉपिक्स मिसिंग है, या वो चीज़ें कैसे हमारी प्लेसमेंट या एट द एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के साथ रिलेट करती हैं, या हमें अपस्किल करने के ऊपर रिलेट करती हैं, उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती थी। कि ठीक है, किसी ने पढ़ा रखा है C++, पर मैं क्यों सीखूँ, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ लर्निंग C++, व्हाट इज़ द पाथ, और उस पाथ में C++ कहाँ फिट इन होता है वो ज़्यादा क्लियर नहीं होता था। तो आई बिलीव जब हमने अपना कॉलेज स्टार्ट किया था, वी स्टार्टेड इन 2020, तो इसी रीज़न की वजह से किया था, क्योंकि हमें लगा था कि उस टाइम पर अमन सर वॉज बिल्डिंग अपनी कक्षा विच वर्क्स विद JEE NEET स्टूडेंट 11-12 स्टूडेंट्स। तो वहाँ पर उस टाइम पर वो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी सी रिलेटेबिलिटी की वजह से सॉल्व करने की कोशिश की जा रही थी विद स्कूल स्टूडेंट्स, बट द सेम प्रॉब्लम एग्जिस्टेड विद कॉलेज स्टूडेंट्स, जिसे आई फील हमने एक स्टेप लेकर सॉल्व करने की हम कोशिश कर रहे हैं।